بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ مسلم لیگ نون نے آئندہ جماعت کے کسی بھی فرد کی گرفتاری پر سخت رد عمل اور احتجاج کا فیصلہ کر لیا، جبکہ نواز شریف نے بھی تبدیلی کا نعرہ لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ قوم فیصلہ کر لی تو تبدیلی چند ہفتوں میں آئے گی۔ شہباز شریف مرد میدان ہیں، مشکلات کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ نواز شریف نے مریم نواز کو پنجاب میں متحرک ہونے کا ٹاسک دے دیا۔ مریم 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ میں جلسہ کریں گی۔ مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس لاہور میں ہوا۔ نواز شریف نے شرکاء اجلاس کو اپنی صحت کے حوالے سے آگاہ کیا اور کہا شہباز شریف کے ساتھ سلوک پر دکھی ہوں، قوم کی خدمت کرنے پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارے جذبے اور بڑھے ہیں، ہم اپنی جدوجہد مزید تیز کریں گے۔ باطل کے خلاف کھڑے ہوں تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، مشکل کو برداشت کر کے کردار ادا کریں گے تو قوم کو تمام مصیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ نواز شریف نے کہا آج کوئی ہے جو مسائل کو دیکھے، کوئی سوال پوچھے، کوئی احتساب کرے۔ عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ ہماری جدوجہد اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام کے لیے ہے۔ ہمیں جدوجہد کرنا ہے کیونکہ 22 کروڑ عوام کی مشکلات اور دکھوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ہم حق اور سچ پر ہیں تو ہمیں ان مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے دوران نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے حکومت مخالف تحریک کے لیے تجاویز طلب کی، جبکہ پارٹی رہنماؤں نے نواز شریف کو علاج کے بغیر پاکستان آنے سے منع کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ نواز شریف صحت مند ہیں، انہیں واپس آنا چاہیے۔ انسانی ہمدردی پر انہیں بیرون ملک جانے دیا۔ نواز شریف نے لندن جا کر وعدہ خلافی کی۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا نواز شریف کے لندن جانے کے بعد ہمارے پاس ان کی کوئی رپورٹ نہیں آئی، لندن جا کر بھی علاج نہیں کروایا، گھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ نواز شریف کو عدالت نے مفرور قرار دے دیا ہے۔ تھرومبوسائٹوپینک کلچرا ڈائگنوز ہوا تھا، ہمارے پاس ہی ہوا تھا، ہم ہی نے ڈائگنوزس کی، ہم ہی نے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ ٹریٹمنٹ شروع کرنے کے بعد ان کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی، ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہتر ہو گئی تھا۔ اگر امپروو نہ ہوتا تو میرا خیال ہے باہر جانا بھی ان کے لیے ناممکن ہوتا۔ تو جہاں تک جس بیماری کے ساتھ وہ ہمارے پاس آئے تھے اس کا ہم نے باقاعدہ علاج بھی کیا، اور یہ بتاؤں کہ 6 سے 8 ہفتے لگتے ہیں فار دا میڈیسن ٹو بیکم ایکولی افیکٹو۔ ہم لوگوں نے جو بیسٹ ٹریٹمنٹ اویلیبل تھا تھرومبوسائٹوپینیا کے لیے وہ دیا گیا، اور میرا خیال ہے جب وہ وہاں گئے ہیں انگلینڈ پہنچے ہیں تو 8 ہفتے ہوئے تھے۔ پرابلی ہز پلیٹلیٹس آر ڈیفینیٹلی اسٹیبلائز، کیونکہ ہمیں اس کے بعد کبھی پلیٹلیٹ کی رپورٹ نہیں آئی۔ انسانی ہمدردی کے تحت ایک بندے کو باہر جانے دیا۔ ان کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ میں آپ کو ریگولرلی رپورٹس بھیجوں گا، میں آپ کو اپنے بارے میں ریگولرلی بتاؤں گا، اور اسی کے مطابق آپ کی وہ جو ہے توسیع ہوتی رہے گی بیل کے اندر۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ میرے خیال میں تو وعدہ خلافی کی کیوں، ہم نے تو بڑے اچھے وہ کہتے ہیں بیسٹ آف وہ کہتے ہیں ان کی بہت بہتری سوچتے ہوئے ان کو ہر طریقے سے اجازت دی۔ ان کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ ہمیں اپنی رپورٹیں بھیجتے، نہ انہوں نے رپورٹیں بھجوائیں، نہ وہ بات کرنے کو تیار تھے، نہ بتانے کو۔ میں تو خود ان کے پرسنلی ان کے معالج کو بھی فون کر لیا۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ شہباز شریف منی لانڈرنگ میں ملوث رہے، جس پر ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ نون لیگ باہر چلی گئی، شین لیگ اندر ہو گئی، صرف میم لیگ رہ گئی ہے جو اب کھل کر اپنا کھیل کھیل رہی ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا شہباز شریف کی گرفتاری پر سب سے زیادہ خوشی مریم صفدر نے منائی۔ میم لیگ جتنا زیادہ کھیلے گی اتنا زیادہ بیڑا غرق کرے گی۔ اب وہ میم لیگ جو ہے وہ سلیاں ہو جن گلیاں وچ مرزا یار نچے کے مزداق، نہ شین لیگ ہے نہ نون لیگ ہے، اب میم لیگ ہے۔ میم لیگ اب کھل کے جناب اپنا کھیل کھیل رہی ہے، اور اس میم لیگ نے کل نوٹیفکیشن دیا کہ آئندہ کوئی پاک فوج کے افسران سے عہدیدار ملاقات نہیں کرے گا۔ مودی کو اپنے گھر میں تمام روایتی سفارتکاری کے اوپر مبنی اصول و ضوابط بالائے طاق رکھ کے پاکستان کے خوشاب کا جو ریکٹر ہے سب سے اہم، اس کے اوپر سے اس کا طیارہ گزروا کر، اور اس طیارے کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ زمین تک کے جو نقشوں کو جانا وہ لے سکتا ہے، وہ طیارہ منگوا کے مودی کو اپنے گھر بلانا جائز۔ اور اب کوئٹہ کے اندر انہوں نے جلسہ رکھا ہے۔ پہلا انہوں نے پولیٹیکل کندھا کس کا لیا؟ محمود خان اچکزئی صاحب کا، کہ اس کی کولیبوریشن سے جو 1-2 ضلعوں کے اندر جو اس کے پاس پاپولیرٹی یا ووٹ بینک ہے اس کو استعمال کر کے یہ کوئٹہ کے اندر جلسہ کریں گے۔ پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ والے پی ڈی ایم جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کے فورم میں سے اس کے بطن میں سے نکلی، پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ
वो पहला जलसा कोयटा में कर रहे हैं, या ना लेना ते ना देना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो एक आंख से महरूम है, इसे सिर्फ अपोजिशन नजर आती है। इसकी हुकूमत को देखने वाली आंख अंधी हो चुकी है। APC के बाद नैब ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। हुक्मरानों से निजात तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। इमरान अहमद न्याजी ने दोबारा एक इंतकामी एजेंडा के तहत सियासी महाजराई का सफ़र शुरू कर दिया है और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन और हमारे सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब को दीदा दलेरी के साथ नैब गर्दी का निशाना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। APC के बाद जिस रफ्तार से नोटिस जारी कर रहा है कि अगर किसी बच्चे को भी कोई मुगालता था नैब के बारे में कि नैब क्या है, वो मुगालता भी दूर हो जाए कि नैब इमरान गठजोड़ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के लिए अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और मुल्क की मईशत लीडर ऑफ अपोजिशन की गिरफ्तारी के साथ 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट गिर जाती है। दुनिया में खबरें छप रही हैं कि पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इससे मुल्क का वकार तबाह हो रहा है। पाकिस्तान में जो मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन है उससे दुनिया में पाकिस्तान को एक रिप्रेसिव स्टेट के तौर पे पहचाना जा रहा है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि चेयरमैन नैब का तकर्रुर किया, इस पर भी केस बना दे। नैब के होते मुल्क नहीं चल सकता, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हक है, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। आज हर शख्स हुक्मरानों से जान छुड़वाना चाहता है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि सियासी इंतकाम का सिलसिला है जिसका मकसद सियासतदानों को बेइज्जत करना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नैब के लिए ये है कि वो PMDC के 6 साल की पहले अपॉइंटमेंट ढूंढे कि कैसे हुई और क्यों हुई। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई करप्शन हुई है तो आप बताएं। नहीं, करप्शन नहीं है, रूल्स की वायलेशन। मैं कहा कौन से रूल की वायलेशन है, तो ये बताने से कासिर हैं। फिर मैंने ये कहा मुझे ये बताएं कि इससे पहले लोग कैसे लगते रहे, इसके बाद कैसे लगते रहे। हुकूमत तो प्रेसिडेंस पे चलती है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैंने इनसे ये कहा मुझे ये बता दें इस हुकूमत ने कोई आदमी लगाया आज तक कि नहीं। मैंने इसीलिए नहीं लगाया कि जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आपका मकसद है कि सियासतदानों की बेइज्जती की जाए, वज़रा की बेइज्जती की जाए, अखबारों में दिया जाए। मैंने कहा हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन जो सरकारी अफसर है ईमानदारी के साथ नौकरी करके रिटायर हो गया, आज आप 6 साल के बाद उसको नैब के अंदर घसीट रहे हैं। किस मकसद के लिए? ये सियासतदानों को अंदर किया जाए। मुश्किल तो उसको भी आएगी, तकलीफ तो उसको भी होगी, खर्चा तो उसका भी होगा। इसका कोई जवाब है आपके पास? तो मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो नैब के हिसाब से गलत हैं, सवाए एक अपॉइंटमेंट के, चेयरमैन नैब की। तो मैं कहता हूँ वो भी ये केस बना दें। वो तो बड़ा सीधा केस है, सारा पाकिस्तान कह रहा है कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट गलत है। तो ये आज ये तमाशा इस मुल्क में लगा हुआ है, इस तमाशे को ख़त्म नहीं करेंगे ये मुल्क नहीं चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तस्दीक है। मुल्जिम को पता है कि पूरे निज़ाम को शिकस्त देकर गया। मुल्जिम लंदन में बैठ कर पाकिस्तान के सिस्टम पर हंस रहा होगा। ये नहायत शर्मनाक बात है कि इस मामले पर अदालत फैसला देगी। कियानी और नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने साबिक वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी की अदम तामील की रिपोर्ट अदालत में पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पर पाकिस्तान हाई कमीशन का नुमाइंदा दोबारा वारंट की तामील के लिए गया, लेकिन अपार्टमेंट्स पर मौजूद शख्स ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इस सारी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि कल मुल्जिम आए तो ये ना कहे कि इसे मालूम न था। मुल्जिम को पता है कि वो सारे सिस्टम को शिकस्त देकर गया है, वो वहाँ बैठकर पाकिस्तान के सिस्टम पर हंस रहा है। ये नहायत शर्मनाक बात है। इस मामले पर अदालत फैसला देगी। अदालत का कहना था कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तस्दीक है। आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी को बाहर जाने देना है या नहीं। जितनी कोशिश एक मुजरम को वारंट पहुँचाने पर लग रही है, कई साइलिन को रिलीफ दिया जा सकता है। हम लिख सकते हैं कि मुल्जिम नवाज शरीफ कहीं रूपोश हुआ है। दरखास्त गुजार नवाज शरीफ तो पूरी कौम से खिताब कर रहा है। अदालत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के
کونسل اتاشی راؤ عبدالحنان کا بیان ریکارڈ کرنے کا بھی فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ آئندہ سماعت پر دفتر خارجہ کے افسران راؤ عبدالحنان اور مبشر احمد کا بیان ریکارڈ ہوگا۔ عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس پر نواز شریف کی ضمانت منسوخ کی درخواست بھی سماعت کے لیے منظور کر لی اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 اکتوبر تک جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت بھی 7 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ملک کا منی لانڈرنگ قانون بھی طاقتوروں کو نہیں پکڑ سکتا۔ پاکستان میں ایلیٹ کلاس کے لیے ہی پالیسیز بنائی گئی ہیں۔ ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ملک میں تعلیم کا نظام بھی یکساں نہیں، تعلیمی نظام میں تفریق ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جبکہ انصاف اور ترقی کے قوام مواقع سے معاشرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم نے ہمارے جو پلاننگ کی گئی وہ صرف ایک ایلیٹسٹ کلچر، ایلیٹ کیپچر، سارا کچھ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے کانسنٹریٹ ہو گیا۔ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز تھے، سارے بہترین علاج گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہوتا تھا۔ ہم سب، میں، میری فیملی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں پیدا ہوئی تھی۔ تو آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹلز غریبوں کے لیے رہ گئے اور پرائیویٹ ہاسپٹلز پیسے والے لوگوں کے لیے، جو کہ ایجوکیشن سسٹم میں بھی یہی ہوا۔ تو یہ جو آج ہم نے یہ MOU وٹنس کیا ہے، یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ وہ جو سب سے پیچھے علاقے ہیں ان کو ہم کنیکٹ کریں۔ کنیکٹیوٹی ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر لانے کے لیے۔ دنیا میں جب بھی کنیکٹیوٹی جاتی ہے تو خود ہی وہ علاقے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ گلگت بلتستان جب تک کاراکورم ہائی وے نہیں بنا تھا تو بالکل وہ ایک ایسی دنیا میں رہتے تھے لوگ کہ اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا باقی دنیا سے۔ LPG کی قیمت میں 3 روپے اضافہ کر دیا گیا فی کلو۔ LPG کی قیمت میں 120 روپے تک پہنچ گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی 33 روپے فی کلو تک مہنگا کر دیا گیا۔ آگرہ کی جانب سے LPG کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت 1382 روپے سے بڑھ کر 1416 روپے تک پہنچ گئی۔ دوسری طرف یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ گھی اور کوکنگ آئل سمیت مختلف اشیاء مہنگی ہو گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی 4 روپے سے 33 روپے فی کلو تک مہنگا کر دیا گیا۔ کوکنگ آئل کی قیمت میں بھی 2 روپے سے 20 روپے فی لیٹر تک اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کے 22 ارب روپے صارفین سے وصول کرنے کی منظوری دے دی۔ گیس کے میٹر کا ماہانہ کرایہ 20 روپے سے بڑھا کر 40 روپے کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ECC کا اجلاس ہوا۔ ECC نے گیس میٹرز کا کرایہ 20 روپے سے بڑھا کر 40 روپے کر دیا۔ اجلاس کے دوران GIDC کے 1/3 واجبات بھی وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس مد میں 22 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ اسٹیل ملز ملازمین کے لیے گولڈن ہینڈ شیک پلان منظور کیا گیا۔ ECC نے گولڈن ہینڈ شیک کے لیے 19 ارب 65 کروڑ روپے فنڈز کی منظوری دے دی۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھتے ہوئے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ موجودہ قیمتوں کا اطلاق 15 اکتوبر تک کے لیے ہوگا۔ آگرہ کی جانب سے پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوائی جانے والی سمری میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سفارش کی گئی تھی۔ حکومت نے اس سے پہلے ماہ اگست کی پیٹرولیم قیمتیں ہی ستمبر میں برقرار رکھی تھیں۔ بھارت باز نے آیا، ایک بار پھر کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی۔ 65 سالہ خاتون زخمی ہو گئی۔ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جند روڈ سیکٹر پر آبادی کو نشانہ بنایا۔ رہائشی علاقوں پر بھارتی ہتھیاروں سے گولہ باری کی گئی۔ فائرنگ سے 71 گاؤں کی 65 سالہ خاتون زخمی ہو گئی۔ پاک فورسز نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر وائس ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو پاک بحریہ کا سربراہ تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ وائس ایڈمرل محمد امجد خان نیازی 7 اکتوبر کو پاک بحریہ کے سربراہ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے الوداعی ملاقات کی۔ آرمی چیف نے نیول چیف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ کو GHQ پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ نیول چیف نے یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے۔
सिंध के 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। सुई सुदरन गैस को पाइपलाइन के लिए ज़मीन देने का फैसला कर लिया गया। सिंध काबीना ने स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में शहीद और जख्मी होने वालों के लिए मुआवजे महकमे बल्दियात के लिए फंड्स देने और सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट एक्ट की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले सिंध काबीना के इजलास में 20 अजला को आफत ज़दा करार देने की पोस्ट फैक्टो मंजूरी दे दी गई। काबीना ने 15 से 20 अक्टूबर के दरमियान गंदम की कीमतें जारी करने का ऐलान किया। सुई सुदरन गैस कंपनी ने मलीर, जामशोरो और ठट्टा में ज़मीन अलाट करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर काबीना अरकान का कहना था कि सूबे को RLNG नहीं चाहिए, सिंध को सूबे से निकलने वाली कुदरती गैस ही दी जाए। काबीना इजलास में 253 पुलिस स्टेशन को तफ्तीश के लिए फीकस 1 लाख रुपए देने की मंजूरी दे दी गई। इससे कबल इन्वेस्टिगेशन के लिए रकम वापस वाले खुद कर्ज करके क्लेम करते हैं। काबीना ने इन्वेस्टिगेशन के लिए फंड्स पहले देने की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों के हलकों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। अवामी नुमाइंदों के जायज़ कामों में किसी को रुकावट नहीं डालने दूंगा। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ इजलास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें मुंतखब नुमाइंदों ने हलकों के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने मसाइल नोट किए और इनके हल के लिए मौका पर ही अहकाम दिए। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में गुलाम अली असगर, शहाबुद्दीन खान, गज़नफर अब्बास, तैमूर अली लाली और दीगर शामिल थे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों के हलकों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। अवामी नुमाइंदों के जायज़ कामों में किसी को रुकावट नहीं डालने दूंगा। अवाम की खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है। नए पाकिस्तान में मफाद परस्तों के मखसूस एजेंडे की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। तरक्की के सफर को पसमानदा इलाकों तक लेकर गए हैं। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि एहतजाज करना अपोजिशन का जमहूरी हक, रुकावट नहीं डालेंगे। नवाज शरीफ बीमार हैं तो अपनी रिपोर्ट पेश करें। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अपोजिशन जमातें तहरीक चलाएं और अमन अमान की जिम्मेदारी हमारी है। एहतजाज के दौरान अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई तो हुकूमत एक्शन लेगी। कानून को अगर कोई हाथ में नहीं लेगा तो हम भी कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। चौधरी सरवर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम बाशाऊर हैं, वो PTI को 5 साल पूरे करने देना चाहते हैं। PTI किसी तौर भी अपोजिशन को दबाव में लाने की कोशिश नहीं कर रही। गिरफ्तारियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। नैब बाइख्तियार और अदलिया आज़ाद है। मेरिट पर फैसले हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि नैब ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। नैब के इक़दामात से आला अदलिया समेत कोई भी मुतमईन नहीं है। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि एहतसाब अब तक यकतरफा ही हो रहा है। नैब को हुकूमत में बैठे आटा और चीनी चोर नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान पर मुसल्लत रहने वाली हुक्मरान पार्टियां मुल्क को कौम की आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि तीनों पार्टियां बैरूनी एजेंडे की तकमील में लगी हुई हैं। अवाम जानो माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हैं। नाम नहाज सेकुलर भारत में लखनऊ की अदालत ने बाबरी मस्जिद शहादत केस का फैसला सुनाते हुए तमाम मुलजिमों को बरी कर दिया। लखनऊ की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा LK अडवाणी समेत तमाम 32 मुलजिमों को केस से बरी कर दिया। फैसले के मौका पर 26 मुलजिम अदालत में मौजूद थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद का वाकया मनसूबाबंदी के तहत नहीं किया गया, इसलिए तमाम मुलजिमान को बरी किया जाता है। अदालती फैसले में वाकये की वीडियो को जाली करार दे दिया गया। बाबरी मस्जिद शहादत केस में लखनऊ की अदालत के फैसले को पाकिस्तान ने शर्मनाक करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान बाबरी मस्जिद शहादत केस के फैसले की शदीद मजम्मत करता है। नाम नहाज जमहूरियत में इंसाफ होता तो सरेआम जुर्म करने वाले आज़ाद ना होते। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल से भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तर की बंदिश का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में एक ऐसे वक्त अपना दफ्तर बंद करने पर मजबूर किया गया जब इसने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को बेनकाब करना शुरू किया और दिल्ली में मुस्लिम मुखालिफ फसादात में पुलिस के मुलव्वस होने का भी पर्दाचार किया। वज़ीर खारजा ने कहा कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भारतीय हथकंडों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका है।
पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रोमेश कुमार ने भारत में कत्ल किए जाने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं के खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम आलमी फोरम से रजू करने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर रोमेश कुमार ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि भारत में बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम आलमी फोरम से रजू करेंगे। जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल से भारत का शहरियत तरमीमी बिल की हकीकत सामने आ गई है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत में अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि लखनऊ अदालत ने बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं और कहा कि ये अक़लियतों के हवाले से इनके इम्तियाजी सलूक का मजहर है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की हिमायत का अहादा करते हुए कहा कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को आलमी बरादरी की जानिब से सराहा गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अफगानिस्तान की आला कौमी कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला ने मुलाकात की, तो दूसरी जानिब सदर मुमलिकत का कहना था कि अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं बल्कि सियासी मुज़ाकरात के जरिए हल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। दोहा में बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात के भी आगाज बारिश का पहला कतरा है। सदर आरिफ अलवी ने अज़्म का अदा किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से अफगान कौम की जानिब से किए गए फैसलों पर इनके साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने तोरखम पर अफगान सरहद के आर पार पैदल नकलो हरकत हफ्ते में 4 रोज के लिए बहाल कर दी। वजारत दाखिला के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरी अब हर मंगल, बुध, जुमेरात को और हफ्ता को मुकामी दस्तावेजात पर सरहद पार आ जा सकेंगे, तो दूसरी जानिब तोरखम सरहद के जरिए आर पार नकलो हरकत सिर्फ पासपोर्ट और वीजा पर ही हो सकेगी। दुनिया भर में आज बुजुर्ग अफराद का दिन मनाया जा रहा है। ख़ुसूसी तौर पर दिन को मनाने का मकसद बुजुर्गों की ज़रूरियात और मसाइल के बारे में मुआशरे में आगाही फराहम करना है, ताकि उम्र रसीदा अफराद को ज़िंदगी की दौड़ में पीछे छोड़ने के बजाय इनके तजर्बात से फ़ायदा हासिल किया जा सके। देखते हैं ये रिपोर्ट। यकम अक्टूबर बुजुर्गों का आलमी दिन मनाने का मकसद मुअम्मर अफराद की ज़रूरियात, मसाइल और इनकी तकालीफ के बारे में मुआशरे को आगाही फराहम करना है। इस दिन को मनाने का मकसद ये भी है कि मुअम्मर अफराद तवज्जो के मुस्तहिक भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 14 दिसंबर 1990 को पहली बार इस दिन को मनाने का ऐलान किया, जिसके बाद ये सिलसिला अब तक जारी है। मुअम्मर अफराद का आलमी दिन इसलिए भी मनाया जाता है कि उम्र रसीदा और बुजुर्ग अफराद को जिंदगी के आखिरी अय्याम में दरपेश मुश्किलात से नई नस्ल को आगाह किया जाए, ताकि वो बुजुर्ग शहरियों को उम्र के आखिरी हिस्सा में किसी किस्म के एहसास महरूमी से निजात दिला सकें। मुअम्मर अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीबात, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का इनकाद किया जाता है, जिसमें मुआशरे के ज़ईफ अफराद की देखभाल और इनके हकूक से मुताल्लिक लोगों को आगाही फराहम की जाए। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,479 हो गई। मजीद 747 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,12,263 हो गए। 467 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 2,97,000 मरीज सेहत याबी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 5 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,234, सिंध में 2,297, खैबर पख्तूनख्वा में 1,259, इस्लामाबाद में 182, बलूचिस्तान में 145, गिलगित बल्तिस्तान में 88 और आज़ाद कश्मीर में 74 मरीज अब तक इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,13,000 हो गई। मरीजों की तादाद 3,39,00,000 हो गई। 2,52,00,000 से जायद मरीज सेहत याबी हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,11,000, ब्राजील में 1,43,000, मैक्सिको में 77,163, तुर्की में 8,130, अफगानिस्तान में 1,462 और सऊदी अरब में 4,740 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से कबल सियासी पारा हाई हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हरीफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने ट्रंप को मसखरा करार दे दिया।
अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन और सदर ट्रंप के दरमियान पहला मुबाहिसा गर्मा गर्मी से भरपूर रहा। जो बाइडन की गुफ्तगू के दौरान ट्रंप बार बार लुकमा देते रहे। गुफ्तगू में मुतअद्दिद बार मुदाखलत पर जो बाइडन ने सदर ट्रंप को मस्खरा करार दे दिया। कहा, इस मस्खरे से बात करना मुश्किल है, इस शख्स से मुआज़रत चाहता हूँ। मुबाहिसे के मेज़बान ट्रंप को गुफ्तगू में मुदाखलत से रोकते रहे मगर वो बास ना आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन की जल्द तैयारी का दावा कर दिया। कहते हैं कि अमरीकी माहिरीन कोरोना की वैक्सीन की तैयारी से चंद हफ्तों के फासले पर हैं। जल्द अवाम को वैक्सीन की तैयारी की खुशखबरी सुनाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी हुकूमत में कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतरीन इकदाम किए गए। मीडिया पर इनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। बेहतरीन इकदाम करके अमरीकी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया। हुकूमती इकदाम के बायस ही कीमती इंसानी जानों को बचाया गया। दूसरी जानिब मीडिया ने इन हक़ाइक़ को अवाम से छुपाए रखा। अमरीकी माहिरीन वैक्सीन की तैयारी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। जल्द अवाम को वैक्सीन की तैयारी की खुशखबरी सुनाएंगे। बरतानवी दारुल हुकूमत में फेस मास्क ना पहनना लड़की का जुर्म बन गया। पुलिस एहलकार ने मास्क ना पहनने पर लड़की का गला दबा दिया। बरतानवी पुलिस भी अमरीकी पुलिस के नक्श कदम पर चलने लगी। राहगीर लड़की का मास्क ना पहनना जुर्म बन गया। पुलिस एहलकार ने नौजवान लड़की को गले से पकड़ लिया और दबा दिया। पुलिस एहलकार ने लड़की का गला इतने जोर से दबाया कि इसको सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी। पुलिस एहलकार कुछ देर मजीद गला दबाए रखता तो लड़की की मौत वाक़या हो सकती थी। अबूज़हबी हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए LPG कीमतों में बड़ी कमी कर दी। LPG कीमतों में 24% तक कमी का ऐलान भी कर दिया गया। कोरोना वायरस के बायस मुआशी मुश्किलात का शिकार अवाम के लिए अबूज़हबी हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। अमाराती बाशिंदों की सहूलत की खातिर हुकूमत ने घरेलू इस्तेमाल के लिए LPG की कीमतों में 24% तक कमी का ऐलान कर दिया। अबूज़हबी के वज़ीर तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सोहेल कहते हैं कि LPG की कीमतों में कमी का मकसद शहरियों का मयार ज़िंदगी बुलंद करना है। शहरियों को खुशियाँ देने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। खेल के मैदानों से खबर है कि चेयरमैन PCB एहसान मानी कहते हैं कि PSL के सीजन 1 और 2 में बेज़ाब्तियों का मामला इंक्वायरी कमेटी में है, जबकि बेज़ाब्तियों की हर सूरत तहकीकात की जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान में लौट आई। किसी टीम के खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाने के लिए पैसे का लालच नहीं दिया। माजी में वेस्ट इंडीज़ की टीम को पैसे देकर पाकिस्तान लाया गया। हेड कोच और खिलाड़ियों की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बारे में एहसान मानी ने कहा कि मिसबाहुल हक, मोहम्मद हफीज़ और अजहर अली बगैर इजाज़त के वज़ीर आज़म से मिले। डिसिप्लिन का मामला है, इसकी तहकीकात की जाएंगी। PSL फ्रेंचाइजर्स के मामले पर चेयरमैन PCB ने कहा कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि PSL फ्रेंचाइज का स्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं। फुटबॉल